یہ نڈھال نڈھال کیوں ہے مہاراج؟ کہیں اس بوتل میں اس کا دم تو نہیں گھٹ جائے گا؟ نہیں، یہ نڈھال اس لیے ہے کہ گندگی میں ہے۔ گندگی؟ بوتل میں گندگی کہاں ہے مہاراج؟ تو اس قبرستان میں کیوں نہیں گھس سکا جہاں اس عورت کو دفن کیا گیا تھا؟ وہاں تو پاک روحیں تھی مہاراج، میں وہاں کیسے جا سکتا تھا؟ کیونکہ تو ناپاک تھا۔ میں تو کالے دھرم کا داس تھا۔ یہ پاک شریر ہے اور تو جیسے ناپاک کے کپڑوں میں چھپا ہوا تھا، اس لیے یہ نڈھال ہے۔ تو یہ بات ہے۔ ایک بات اور بتائیں منکاری مہاراج، یہ اس بوتل سے آزاد کیسے ہو سکتا ہے؟ بوتل کی ڈاٹ کھلنے سے۔ ڈاٹ تو میں نے مضبوطی سے لگائی ہے، مگر یہ بوتل ٹوٹ تو نہیں جائے گی؟ خود بخود تو نہیں ٹوٹے گی۔ کوئی اسے توڑ دے تو یہ زخمی ہو جائے گا۔ بس یہی پوچھنا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیے مہاراج کہ میں اور کیا کروں؟ منکاری عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، سب کچھ مجھ سے ہی پوچھے گا یا خود بھی کچھ کرے گا؟ برا نہ مانے مہاراج تو ایک بات کہوں؟ جیون بڑائی میں گزرا، کسی کو خود سے بڑا نہیں مانا، بس ایک آپ ہیں جسے خود سے بڑا مان کر گرو بنا لیا، اس لیے سب کچھ آپ ہی سے پوچھتا ہوں۔ مجھے کیا دے گا اس کے بدلے میں؟ یہ جان کر من اداس ہو گیا کہ آپ خود ایک آتما ہیں۔ آتماؤں کو بھلا کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آپ کے اپنے من میں کوئی اچھا ہے مہاراج؟ ہاں ہے، منکاری نے کہا اور راج گندل چونک پڑا، پھر بولا، آتماؤں کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے مہاراج؟ کبھی کبھی۔ تو بتائیے میں آپ کو کیا دوں؟ گروت چنا۔ اس کے لیے میں نے آپ کو کب منع کیا ہے؟ جب آپ مجھ سے کہیں۔ ٹھیک ہے، سمے آنے پر تجھ سے مانگ لیں گے۔ میں بھی آپ کو وچن دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے جو کچھ مانگیں گے میرے بس میں ہوا تو ضرور دوں گا۔ ابھی یہ وچن کافی ہے، چل چھوڑ ان باتوں کو۔ تو کہتا ہے کہ اب تیرے من کی سب سے بڑی بھاونا اس عالم سے بدلہ لینا ہے۔ جی مہاراج، یہ کام میں کیسے شروع کروں؟ پہلے تو نے ایسا کیا تھا تو تجھے ناکامی ہوئی تھی۔ ہاں، اس جن نے مجھے کامیاب نہ ہونے دیا تھا، مگر اب یہ میرے قبضے میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب تو ایسا کر کے خود اس عالم کا روپ اختیار کر کے اس بستی میں پہنچ جا۔ اس کا روپ اختیار کر کے راج گندل نے ایک خوشگوار حیرت سے کہا، ہاں، لمبے عرصے سے وہ عالم اپنے گھر میں نہیں ہے۔ تو اس کی شکل میں وہاں پہنچ جا، خود کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دے اس عالم کی شکل میں۔ وہ بلبلا کر تیرے پاس آئے گا اور خود کو اصل عالم ظاہر کرے گا۔ اس کے پاس اب اس جن کی شکتی تو نہیں ہوگی، تو اسے چت کر لے گا۔ یہ تو بڑی اچھی تجویز ہے مہاراج، میں اسے تکلیف ہی تو دینا چاہتا ہوں۔ اس سے بڑی تکلیف اور کیا ہوگی کہ وہ اصل سے نقل رہ جائے گا اور تو اصل۔ اس کی خوب بدنامی کرنا یہ تجھ پر ہوگا۔ تو اپنا کام کیسے کرتا ہے؟ وہ تو آپ چنتا ہی نہ کریں مہاراج۔ بس آخری بات تجھے اور بتا دوں، اس گھر میں گھسنے سے پہلے اس کی خوب صفائی کر دینا، وہاں سے ہر پاک چیز نکلوا دینا، ورنہ تو وہاں نہیں رہ سکے گا۔ اور میں اس کا روپ کیسے اختیار کروں گا؟ بھوانی ماں کی شکتی سے میں تجھے اس کا منتر بتاتا ہوں، منکاری نے کہا اور راج گندل تیار ہو گیا۔ منکاری اسے منتر بتاتا رہا۔ منتر پڑھنے کے بعد راج گندل نے کہا، ہے بھوانی ماں، مجھے اس عامل بابا کا روپ دے دے۔ تبھی راج گندل کا چہرہ بدلنے لگا۔ منکاری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی، وہ راج گندل کے بدلنے کا عمل دیکھ رہا تھا اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لے، اب تیرا چہرہ بدل گیا، اب تو شکل سے مسلمان لگ رہا ہے۔ جے مہا منکاری، جے مہا گرو۔ اب تو یہی کہوں گا کہ تم نے مجھے نیا جیون دیا، نیا سنسار دیا ہے۔ کہنے میں کچھ نہیں جاتا بالک، گروچنا یاد رکھنا۔ کیا لوگے منکاری مہاراج؟ دیا ہوا تو سب کچھ تمہارا ہی ہے، ورنہ میں کیا رہ گیا تھا؟ کہا نا، سمے آنے پر مانگ لوں گا تجھ سے گروچنا۔ اور سنو، کسی شیشے میں مت دیکھنا اپنے آپ کو، ورنہ سب کچھ بھسم ہو جائے گا۔ کوئی گندا جوڑ نظر آئے تو اپنی صورت اس میں دیکھ لینا۔ اس کی شکل اختیار کی ہے تم نے، اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ چلتا ہوں، منکاری نے کہا اور کچھ قدم آگے بڑھ کر فضاؤں میں تحلیل ہو گیا۔ وہ راج گندل کے ذہن میں ایک کریز چھوڑ گیا تھا۔
उसे अब ये तो पता चल ही चुका था कि मंकारी कोई जीता जागता इंसान नहीं है, बल्कि सिर्फ एक आत्मा है। पर सवाल ये पैदा होता है कि आत्माओं को भी किसी चीज की जरूरत होती है। राजकंदल अपने अंदर एक अनोखी कैफियत महसूस कर रहा था। वो कभी कभी सोचता था कि जीवन किस तरह बदल गया है। बहरहाल जो कुछ मिल गया था उसे वो बहुत समझता था। भवानी पिंड में क्या कुछ है, अभी सब कुछ उसके इल्म में नहीं था। बहुत सारी बातें सोचता रहा और उसके बाद वहां से आगे बढ़ गया। ये भी एक नासमझ में आने वाली बात थी जो मंकारी ने कही थी कि किसी आईने में अपना मुंह ना देखे। पता नहीं इसमें क्या राज था। फिर वो वहां से चलता हुआ एक आबादी तक पहुंच गया। न जाने कौन सी जगह थी। वो सबसे पहले अपना जायजा लेना चाहता था। चुनाचे एक ऐसा जोड़ मिल गया जहाँ गाय भैंसें पानी पिया करती थी। उसने जोड़ के गंदे पानी में अपनी शक्ल देखी और खुद हैरान रह गया। बाबा अदीस का चेहरा उसे याद था और उस वक्त वही चेहरा उसकी निगाहों के सामने था। उसके हलक से बेइख्तियार एक कहका निकल गया, इस शक्ल में चाहूं तो तेरे सारे परिवार को गंदा कर सकता हूँ, पर यह मेरी लड़ाई नहीं, मुझे तो काम ही कुछ और करना है। फिर वो उस बस्ती से निकलकर सुभान गली पहुंच गया जहां बाबा अदीस अली का ठिकाना था। चूंकि वो वहां पहले भी आ चुका था और यहाँ के माहौल से वाकिफ था, इसलिए सुभान गली में बराह रास्त बाबा अदीस अली के घर जाने के बजाय वो उस दरख्त के नीचे पहुंच गया जहां बाबा अदीस अली से उसका पहला मुकाबला हुआ था और उस मुकाबले में उसे भरपूर शिकस्त से दो चार होना पड़ा था। दरख्त के नीचे उसने चौंकड़ी मार ली। अपने काम का आगाज वो जिस तरह करना चाहता था, जिस सिलसिले का पहला कदम था, उसे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। गुजरते हुए लोगों ने उसे देखा और उसकी जानिब दौड़ पड़े और फिर उन्होंने उससे बड़ी मोहब्बत का इजहार शुरू कर दिया। कहाँ चले गए थे आप बाबा, हमें अकेला छोड़कर? हमने तो ये समझ लिया था कि आप अब वापस नहीं आएंगे। आपके बगैर सारी बस्ती सुनी सुनी हो गई थी। कितने लोग आपकी तलाश में आते थे और मायूस होकर वापस चले जाते थे। आखिर आपने अपना घर क्यों छोड़ दिया था? बस्ती वालों से कोई गलती हो गई थी तो एक बार इन्हें बता तो देते। हम सब सच्ची बात है कि बड़े उदास हो गए थे। बाल बच्चे कहाँ हैं? घर में तो ताला पड़ा हुआ है। अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हर शख्स अपनी कहानी सुना रहा था और बस्ती में जाकर दूसरों को इतला दे रहा था कि अदरीस अली वापस आ गए हैं। उन लोगों की बातों से राजगंदल ने एक नतीजा अखज़ किया था। फिर शाम को जब बहुत से लोग वहां जमा हो गए तो पहली बार राजगंदल ने जुबान खोली। भाइयों, बस कुछ ऐसे वाकयात और हालात पेश आ गए थे कि मजबूरन मुझे घर छोड़कर जाना पड़ा। आप सब लोगों ने मेरे साथ हमेशा अच्छा सलूक किया है। मैं खुद भी आपसे दूर नहीं रहना चाहता था, लेकिन जो कुछ मुझ पर बीत रही थी आप लोगों को बताकर शर्मिंदा नहीं होना चाहता। मेरे बाल बच्चे कहीं और रह रहे हैं। मैं आप लोगों की मोहब्बत में ही आ गया हूँ और वादा कीजिए बाबा कि अब आप कहीं नहीं जाएंगे। आप हुक्म देकर तो देखें। हमने तो जिंदगी भर आपसे यही दरख्वास्त की कि आप सबके काम आते हैं, कभी हमें भी अपनी खिदमत का मौका दें। आप लोग बराह करम मेरे घर की सफाई करा डालिए। कुछ वजूहात हैं उसकी। मैं चाहता हूं कि मेरे घर में माजी की एक कील भी ना रहे। दोनों दीवार, जमीन, उस घर में साजो सामान सब निकाल कर बराह करम आपस में तकसीम कर लें। अगर आपने वहां पहले की लगी कोई कील भी छोड़ दी तो उस घर में मेरा गुजारा नहीं होगा। उसकी दीवारों से रंगो रोगन भी उतार दीजिए। मैं नहीं चाहता कि माजी का एक नक्श भी वहां कायम रहे। अगर आप लोग मेरे लिए ये सब कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं कहीं और चला जाऊंगा। नहीं बाबा, आप साहिब इल्म हैं। जो खिदमत है वो हम खुशी के साथ सर अंजाम देंगे। आप आराम से यहाँ क्याम कीजिए, हम ये सारे काम किए देते हैं। राजगंदल ने अदरीस अली से सुभान गली वालों की वालिहाना मोहब्बत के मनाजर देखे। बहुत से लोग दूसरे ही दिन सुबह ही से उस घर में मसरूफ हो गए थे और उन्होंने वाकई रचे बसे घर को खंडर बना दिया। दोनों दीवार का रंगो रोगन खुरच दिया गया, एक एक कील उखाड़ दी गई। लोग हैरान थे कि बाबा अदरीस अली अब इस वीरान घर में रहेंगे। बहरहाल लोगों ने अदरीस अली की हिदायत के मुताबिक अमल किया और राजगंदल उस घर में मुंतकिल हो गया। अब महाशक्ति हासिल करने का तस्वर उसके जहन से निकल गया था। महाशक्ति को हासिल करने के लिए जो कुछ वो गंवा बैठा था वो उसकी जिंदगी का अहमनाक तरीन वाकया था।
अब वो उसको दोहराना नहीं चाहता था। इस घर में मुंतकिल होने के बाद उसने इसे नफरत भरी निगाहों से देखा और बोला, अदरीस अली, देख मैंने तेरे घर को उजाड़ दिया है, आ मेरे सामने आ। तू ना आया तो मैं खुद तलाश कर लूंगा तुझे। अब मुझे भवानी माँ की शक्ति हासिल है। तेरे साथ जो सलूक करूंगा वो तू अपनी आंखों से देख लेगा, क्या समझा? राजगंदल ने तरह तरह की मंसूबाबंदियां शुरू कर दी थी। आली जान ने जब से बच्ची की जिम्मेदारी कबूल की थी वो भरपूर तरीके से उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था। उसे खुद भी उस बच्ची से मोहब्बत हो गई थी। खैर मोहम्मद के घर में वो बच्ची के हवाले से खुशहाली ले आया। गुलाब खां खुद अपनी जान बचाने के लिए उसे छोड़ गया था। अगर वो वहाँ रहती तो न जाने उस घर के हालात क्या होते। आली से यकीनन वहाँ भी उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त करता, लेकिन अच्छा ही हुआ उस वक़्त शाहिना पूरी तरह बाअमल थी। सूरत हाल लाइलम होने के बाद न जाने वहाँ क्या करती। बहरहाल जब राजगंदल ने खैर मोहम्मद के घर में बच्ची का पता लगा लिया तो आली जान ने उसे वहाँ से भी हटा दिया। बच्ची के नाम बदलते रहे, अब वो नैना बन गई थी। यहाँ जो काम हुआ वो ये कि खुद राजगंदल की ख्वाहिशों का जनाजा निकल गया और वो अपना सारा काला ज्ञान गंवा बैठा। आली जान ने बशीर बेग की हैसियत ही बदल दी। बशीर बेग के तो दिन ही फिर गए थे, साथ में अम्मा ताजी भी ऐश करने लगी थी। आली जान ने हर उस शख्स को मालामाल कर दिया था जिसने बच्ची के साथ बेहतर सलूक किया था। लेकिन अब सूरत हाल में एक अचानक तब्दीली हुई थी। राजगंदल को एक बार फिर बर्तरी हासिल हो गई थी, जबकि आली जान मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था। वहाँ जो हो रहा था वो तो हो रहा था, लेकिन बशीर बेग और अम्मा ताजी ने नैना की खिदमत से मुंह नहीं मोड़ा था। वो बेवकूफ़ नहीं थे। उन्हें एहसास था कि जब से नैना उसके पास आई थी उसके दिन फिर गए थे। अम्मा ताजी पुराने ज़माने की औरत थी, वैसे ही बातें करती थी। अरे तुम्हें नहीं पता बशीर बेग, हिंदू लोग दिवाली की रात दिए जलाकर पिजमी देवी का इंतजार करते हैं। जिसके घर में पिजमी देवी उतरती है वो माला माल हो जाता है। तो फिर बशीर बेग ने कहा, मुझे तो ये वही लगती है। अम्मा तेरा दिमाग खराब है। क्यों? वो मुसलमान है, उसका नाम नैना है। अरे मुझे बता रहा है ये सब कुछ, तुझे मालूम है तू सोते में बोलता है। एक दिन ख्वाब में बुड़बुड़ाते हुए तूने मुझे बताया था कि एक गाड़ी चुराई थी मैंने, उसमें ये बच्ची मिली थी। किसकी थी क्या थी कुछ नहीं पता, पर तूने जब बच्ची के वारसों से राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि बच्ची को मार दो, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। बशीर बेग का मुंह उतर गया, खुशक होंठों पर जुबान फेरता हुआ बोला, मैंने ये कहा था तुझे अम्मा। सोते में इंसान बुरे बुरे ख्वाब देखता है और इन ख्वाबों की कोई सरपाव नहीं होते। बस ऐसे ही मेरी खोपड़ी में कोई बात उतर गई होगी जो मैंने बक बक कर ये बताया। बच्ची मेरी बहन की है, मेरे करतूतों की वजह से मेरी बहन मुझसे नहीं मिलती थी, मर गई तो इस बच्ची का मेरे अलावा और कोई नहीं था। होगी जो कुछ भी है, पर भैया एक बात कहूँ तुझसे, है खुशकिस्मत, दौलत बरसी है आसानी से, ये ऐशो इशरत, ये कोठी, ये गाड़ी और रुपया ही रुपया। भैया मेरी निगाह में तो वो बहुत मुकद्दर वाली है। और फिर सच्ची बात बताऊं, कुछ है उस बच्ची में, अकेली किसी से बातें करती रहती है, हंसती बोलती है, मुस्कुराती है। मैंने तो कभी आंख ही नहीं धरी, बस जैसे भी बन पड़ा उसकी खिदमत करती रही हूँ और मुझे अल्लाह ने उसका सिला दिया है। ये बात बशीर बेग ने पहले भी सुनी हुई थी और कई बार सुन चुका था, लेकिन अब उसके ज़हन में एक जरा सी उलझन पैदा हो गई थी। वाकई बच्ची का ताल्लुक हिंदू धर्म से है। वो अब अक्सर बच्ची को देखता रहता था और सोचता रहता था, अगर ये हिंदू है तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसने खुद ही दिल को समझाया और सोचा कि मासूमियत का एक ही धर्म होता है और वो होता है मासूमियत। उस बच्ची को ये बताओ कि वो मुसलमान है तो वो समझदार होते होते अपने आप को मुसलमान समझने लगेगी। अगर बताओ कि हिंदू है तो वो अपने आप को हिंदू मानने लगेगी। अब फैसला तकदीर पर छोड़ देना चाहिए। अलबत्ता उसने न जाने उस बच्चे की निगरानी शुरू कर दी। वो अम्मा ताजी की बातें सुनता रहता था और हंसता रहता था। उन दिनों बच्ची कुछ उदास रहने लगी थी। वो अपने आप बोलने भी लगी थी, बड़ी प्यारी और मासूम बातें करती थी। फिर एक दिन रात को उसने बच्ची को अपने कमरे से बाहर जाते हुए देखा।
کوٹھی کے مغربی حصے میں ایک خوبصورت لان تھا۔ اس لان میں لیموں کے کافی تعداد میں پودے لگے ہوئے تھے اور جب پودوں پر لیموں نکلتے تو ان کی بھینی بھینی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ ان دنوں پہ یہی موسم تھا۔ چھوٹے چھوٹے جھاڑ جو بچی کے قد کے برابر ہی تھے لان پر پھیلے ہوئے تھے۔ بچی کمرے سے نکل کر جھاڑ کے نیچے پہنچ گئی اور پھر وہاں بیٹھ گئی۔ بشیر بیگ اس کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ بچی کے منہ سے آواز نکل رہی تھی، ماما جی کہاں چلے گئے تم؟ میں تمہیں یاد کرتی ہوں ماما جی، تم مجھے بہت یاد آتے ہو ماما جی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اور پھر وہ بچی منہ بسور کر رونے لگی۔ بشیر بیگ کا دل دکھ گیا، وہ برداشت نہ کر سکا اور بچی کے سامنے آ گیا۔ نینا بیٹی، ماما جی کہاں ہیں؟ میرے ماما کو بلا دو۔ کون ماما جی؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ میرے ماما جی۔ بچی بسور کر رونے لگی اور بشیر بیگ اسے کلیجے سے لگا کر اندر آ گیا۔ اس وقت تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن بعد میں اسے اندازہ ہو گیا کہ ان دنوں وہ بہت اداس ہے۔ پہلے وہ ہنستی بولتی مسکراتی رہتی تھی، لیکن اب وہ مسکراتی بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہنستی بولتی ہے۔ کیا کروں میں اس کا؟ تاجی سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگی، سیدھی سی بات ہے کہ اسکول میں داخل کرا دو۔ بشیر بیگ اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا تھا۔